अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस मीटिंग को, इस सर्विस को जो खुदा की है। Let all of us pray by the power of the Holy Spirit. खुदा की सामर्थ से हम सब लोग मिलकर प्रेयर करते हैं। Father, in the name of Jesus, I खुदा, bless everyone in this place who have participated in the Zoom meeting. In the mighty name of Jesus, I release a grace over them. I release the power for them to understand the word of the living God. I make them to walk in the perfect ways of the Spirit of Jesus. Let them have an anointing to receive your word as a living word, my Father. In the name of Jesus, make their heart to be prepared to receive your power, to receive your spirit, to receive the word of the living God. In the name of Jesus, I bless everyone for the glory of God. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Amen. Yeah, I hope everyone is doing well by the grace of God. मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से हैं खुदा की ग्रेस के द्वारा। Yeah. So, country divide us, Jesus united us. या कंट्री हमें डिवाइड करती है, बट जीसस हमें इकट्ठा करते हैं। By the blood of Jesus, we are united in the Spirit. बाय खुदा के लहू के द्वारा हम यूनाइटेड है स्पिरिट के द्वारा। So I think today's topic is the revelation of a prayer. So today आज का टॉपिक है रेवलेशन ऑफ प्रेयर। So how to pray and how can we unlock the prayer life in our spirit? कैसे हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं और कैसे हम अनलॉक कर सकते हैं। Yeah, let us go into the word of God. हम चलते हैं खुदा के वचन की तरफ। According to the book of Revelation. According to the book of Revelation, chapter number 10 and verse number 8. वर्स नंबर 8। Yeah. Okay. Revelation chapter 8. Chapter 10 verse 8. चैप्टर 10 वर्स 8। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 10 की हम 8 वर्स को ओपन करेंगे। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्ग दूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। Yeah. Amen. So here is the revelation begins right now. So यहाँ पर रेवलेशन स्टार्ट होती है। Here is the apostle John is speaking to the angel of the Lord. यहाँ अपोस्टल प्रेरित यूहन्ना जो एंजल से बात कर रहे हैं। So the angel of the Lord is saying that take the little book. So खुदा के जो स्वर्गदूत है वो क्या कह रहे हैं कि इस बुक को ले ले। But in verse number 9, the apostle John is trying to ask the book to the angel. लेकिन वर्स नंबर 9 में जो अपोस्टल है वो लेने की बात कर रहे हैं कि मुझे दे। But angel of the Lord is saying that take the book. I am not able to give, but you have to take from my hands. इसमें स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ से ये बुक ले ले। So we are in the level of asking something to God. हम इस लेवल पर हैं कि हम खुदा से कुछ भी ले सकते हैं। But God is in the level of giving something to you, nothing but taking something from God. खुदा इस लेवल पर है कि वो हमें देना चाहते हैं। Now the revelation begins. Ready to listen, my people of God. यहाँ रेवलेशन स्टार्ट होती है। So most of the people they are praying, they are believing that they are asking something to God. काफी लोग हैं जो प्रेयर करते हैं और प्रेयर में खुदा से मांगते हैं। Prayer is a conversation between two people. प्रेयर एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है दो लोगों के बीच में। Between you and God. बिटवीन हमारे बीच में और खुदा के बीच में एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है। Yeah, when you talk to God, जब हम खुदा से बातें करते हैं, God has to talk back to you. खुदा वापिस हमसे बातें करते हैं। This is called the conversation. यही इसको हम बातचीत कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। This is called the prayer according to the sight of God. खुदा की नजर में इसी को हम प्रेयर कहते हैं। But we are asking something, but we are not listening something from God. हम मांग तो रहे हैं खुदा से लेकिन हम खुदा की सुन नहीं रहे हैं। So today, let your ears be open in the name of Jesus, so that you people will listen the voice of God, so that the conversation begin to start from today. आज हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमारे कानों को खोले ताकि खुदा जो हमसे बात करना चाहते हैं हम उस आवाज को सुन सके। So prayer is a conversation between God and you. प्रेयर एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है हमारे और खुदा के बीच में।
So here the apostle John is asking the book to the angel, but the angel is trying to say that you have to take from my hands. जो अपोस्टल जॉन है वो एंजल से बोल रहे हैं, लेकिन एंजल उनको बुक दे रहा है कि इस बुक को ले ले। So apostle John is already in the dimension of asking something to God. अपोस्टल जॉन जो है वो ऑलरेडी इस डायमेंशन में है कि खुदा से मांग रहे हैं, वो इस But डायमेंशन God is saying that just take it, no need to ask something, just you have to take it. ओ लॉर्ड, लेकिन खुदा क्या बोल रहे हैं कि जस्ट टेक इट, मांगने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ले लो, सब कुछ तुम्हारा है। According to the 1 Corinthians chapter number 3 verse number 21. Can you read in the Hindi? Yeah. First Corinthians chapter 3 verse 21. फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 3 उसकी वर्स 21 को हम रीड करेंगे अभी। इसीलिए मनुष्यों पर कोई घमंड मत करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। आमेन। So everything is yours. सब कुछ तुम्हारा है। Don't ask again, you have to take something from God. इसीलिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। But you don't know how to take from God. There is no revelation, there is no knowledge. बट इस बात की किसी के पास नॉलेज नहीं है कि खुदा से लेना कैसे है। God said, my people perish because of the lack of knowledge. क्योंकि खुदा भी कह रहे हैं कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं नॉलेज की कमी के कारण। I'm repeating again, my people perish because of the lack of knowledge. Every people से बोले कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं ज्ञान की कमी के कारण, नॉलेज की कमी के कारण। My people perish not because of the lack of fasting and prayer. मेरे लोग फास्टिंग और प्रेयर की कमी की वजह से नाश नहीं हो रहे हैं। But my people perish because of the lack of wisdom and knowledge. और मेरे लोग नाश हो रहे हैं नॉलेज की कमी के कारण, बुद्धि के कारण, बुद्धि की कमी के कारण। So Apostle John is trying to say that Apostle John is trying to ask the book to the angel. अपोस्टल मांग रहा है उस बुक को, अपोस्टल जॉन ने मांगा उस दूत को, स्वर्गदूत से उस बुक को। In the verse number 9, the scripture is saying that the angel of the Lord is saying that he said unto me, take it and eat it. लेकिन वर्स 9 में, रेवलेशन में हम वर्स 9 में क्या देखते हैं कि एंजल उसको बोल रहे हैं, एंजल अपोस्टल जॉन को बोले कि इसे ले ले और खा ले। But the apostle John is trying to say that give me from your hands. लेकिन अपोस्टल जॉन क्या बोल रहे हैं, उससे मांग रहे हैं कि ये मुझे दे दे। Children of God, we are not beggars to ask something to God. खुदा के बच्चों, तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है खुदा से। We are the sons of God to take something from God. हम खुदा के बेटे हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं खुदा से। We have an authority from God to take something from Jesus. हमारे पास एक अथॉरिटी है कि हम जीसस से सब कुछ ले सकते हैं। There is something revelation. यहाँ समथिंग एक रेवलेशन है। We pray what we have. हम प्रे करते हैं जो हमारे पास है। Satan tries to inspire you to pray for what you have already existed. ओ जीसस, जो शैतान है वो इंस्पायर करता है कि जो ऑलरेडी हमारा है हम उसके लिए प्रे कर रहे हैं। So we are enjoying by praying what we have already. हम एंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा हम उस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। This is the deception happening in the churches. यही एक डिसेप्शन है, यहाँ हम धोखा खा रहे हैं इस बात में। Satan not only uses your badness but also he uses your prayer. शैतान तुम्हारी बैडनेस में यूज नहीं कर रहा है तुम्हें, तुम्हारी प्रेयर में भी वो यूज कर रहा है। In the book of Matthew chapter number 4, इन मैथ्यू की बुक में, मत्ती की बुक में चैप्टर नंबर 4, there is a scripture, in the fasting days of Jesus, वहाँ एक प्लेस है जहाँ Satan came to Jesus, जहाँ शैतान जीसस के पास आता है and saying to Jesus, और जीसस से कहता है, if you bow to me, अगर तू मेरे आगे झुकेगा, I will give glory of the world to you. मैं तुम्हें दुनिया की पूरी ग्लोरी, महिमा दूंगा। But that was already existed in Jesus. लेकिन वो ऑलरेडी जीसस में एग्जिस्ट करती है। हालेलुया। This is a trap of a Satan. ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है शैतान का हमें फंसाने के लिए। So if you do something bad, that something blessing is going to come. It is inspired by the Satan.
अगर हम कुछ बैड करते हैं, ठीक है, वो चीज हमें रोक देती है, शैतान उस ब्लेसिंग को रोक लेता है। So Satan makes you to pray. सो शैतान तुम्हें प्रेयर करने के लिए इंस्पायर करता है कि तुम प्रेयर करो, जो For ऑलरेडी what you have already existed. जो ऑलरेडी हम लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारी लाइफ में, जो ब्लेसिंग ऑलरेडी है, शैतान उस चीज के लिए हमें इंस्पायर कर रहा है कि तुम प्रेयर करो। Today, let the power of the Holy Spirit locate you and make your prayer life to be inspired by the Holy Ghost. आज हम प्रार्थना करते हैं कि होली स्पिरिट की सामर्थ्य से हम लोग जो भी प्रार्थना करें वो होली स्पिरिट की सामर्थ्य से हम लोग करें। I already said in a previous section. मैंने तुम्हें ऑलरेडी ही प्रीवियस सेक्शन में बताया था। You is nothing but your voice. बट यू आर नथिंग, तुम कुछ नहीं हो लेकिन तुम्हारी आवाज। You are nothing but your voice. तुम कुछ नहीं हो लेकिन तुम्हारी आवाज। Let me give you the revelation. According to the book of Acts, बुक ऑफ एक्ट्स, chapter number 10, प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 10 and verse number 11. वर्स नंबर 11, प्रेरितों के Yeah. काम चैप्टर 10 वर्स नंबर 11, इसको हम रीड करेंगे। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। Hallelujah. Okay, then. So there is a vision that is coming to the Peter. यहाँ एक विजन है जो पीटर देख रहा है। In the vision, there are certain kind of dimension of animals. यहाँ एक सर्टन काइंड का एक डायमेंशन है, जो डायमेंशन एक प्लेस है जो वो देख रहा है। There is a voice of God that is saying, यहाँ एक खुदा की आवाज है जो उसको कह रही है, you have to kill and eat. तू इसे मार और खा। But the Peter replied physically. लेकिन पीटर ने क्या किया? फिजिकली उसको रिप्लाई किया। So in the verse number and the verse number 14, वर्स नंबर 14 में Peter said, पीटर ने कहा, पतरस ने कहा, not so, Lord, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, for I have never eaten anything. क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। Yeah, that is unclean. क्योंकि ये अनक्लीन है, अपवित्र है। Yeah, so it means when a vision comes to the Peter, इसका मतलब है जब एक विजन पतरस के पास आया था, so vision came to the Peter spiritually. विजन जो कैसे आया था? स्पिरिट में आया था, उसके स्पिरिचुअली आया था। But Peter is replying physically. लेकिन पीटर ने रिप्लाई कैसे किया? फिजिकली। Your body is the reflection of your spirit. तुम्हारी जो बॉडी है वो एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारी स्पिरिट का। So when you are replying to the vision physically, जब तुम रिप्लाई कर रहे हो अपने विजन को फिजिकली मुंह से बोलकर, it will manifest in the realms of the spirit. ये क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? स्पिरिचुअल रैम में। So when Peter said, no Lord, I'm not going to eat this. इसीलिए जब पीटर ने कहा कि नहीं लॉर्ड, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। Second time again, the voice of the Lord is saying that. सॉरी, Second time, the voice of God is again saying. हाँ, सेकंड टाइम फिर से खुदा की आवाज उसको सुनाई देती है। Peter, kill and eat. पीटर, इसको मार और खा। So nothing but so Peter rejected something, a vision in the spirit, by replying something in physical. So पीटर ने क्या किया? स्पिरिचुअली जो उसको विजन आया था उसको फिजिकली रैम में उसको रिजेक्ट कर दिया था उस I hope विजन। everyone is understanding. This is deep revelation. मैं आशा करता हूँ सब लोग समझ रहे हैं क्योंकि ये एक डीप रेवलेशन है। I'm teaching you how to have a conversation between you and God. मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे हम खुदा से बात कर सकते हैं, तुम्हारे और बीच में कैसे कन्वर्सेशन हो सकती है। Let me say another example. मैं एक दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें समझाता हूँ। So God called Samuel, खुदा ने सैमुएल को बुलाया था, but शमूएल, he didn't understand that it is a voice of God. लेकिन वो आवाज को नहीं समझा था जो खुदा ने उसको आवाज दी थी। So at that time, लेकिन सेकंड टाइम, so the Samuel replied to God. सो सैमुएल ने खुदा को रिप्लाई किया था।
So God, I'm here. खुदा मैं यहाँ हूँ. The moment Samuel replied physically, then the Spirit of the Lord spiritually continuing talking to the Samuel. जब ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, जब सैमुअल ने फिजिकली रिप्लाई किया था कि खुदा मैं यहाँ हूँ, तब खुदा की स्पिरिट ने फिजिकली कंटिन्यू करा था बात को. So whatsoever that you pray physically, it will be manifested in the spiritual. सो अगर जब आप फिजिकली प्रे करते हैं तो वो स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं वो चीजें. You people will speak in tongues that can break the dimension of the realms of the heavens. यस, जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं वो उस डायमेंशन को ब्रेक करता है जो स्पिरिचुअल रैम को, वहां हम एंटर करते हैं. So if you want to respond to the voice of God, just speak to the Lord. अगर हम खुदा के साथ बात करना चाहते हैं, जस्ट हम फिजिकली खुदा से बातें करें. So I hope everyone is understanding. मैं आशा करता हूँ सब लोग समझ रहे हैं. So you have to reply to God physically so that it can come into the spiritual realm. सो तुम्हें फिजिकली उसको रिप्लाई करना पड़ेगा ताकि खुदा तुम्हारी लाइफ में बात कर सके और तुमसे काम कर सके. So I already said that you are nothing but your voice. सो सब लोग कहें कि आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन मेरी आवाज. When you pray by voice, जब तुम बाय वॉइस बोलकर खुदा से प्रार्थना करते हो, your voice enter into the heavenly places. तुम्हारी आवाज हेवनली प्लेसेस में एंटर करती है. Nothing but you enter into the heavenly places. ओह लॉर्ड थैंक यू जीसस. नथिंग, लेकिन तुम्हारी आवाज के द्वारा तुम हेवन में एंटर कर रहे हो. So this is called the conversation of the prayer. सो इसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करना, बातचीत So करना. don't only ask something to God, सो सिर्फ मांगना ही नहीं है खुदा से. because God has given everything to you already. ओह लॉर्ड, खुदा ने सब कुछ हमें दे दिया है, सब कुछ हमारा. Knowledge unlocks what you have received from God. नॉलेज अनलॉक करती है क्योंकि जो तुम खुदा से रिसीव कर रहे हो. Sometimes Satan inspired you to pray for what you have already. कई बार शैतान तुम्हें इंस्पायर करता है कि उस चीज के लिए प्रेयर करो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है. So brother, open your spirit right now. सो ओपन, अपनी स्पिरिट को ओपन करें राइट नाउ. So open your eyes today. अपनी आंखों को खोलें आज. Sometimes we believe that we are praying simply because of the Holy Spirit presence. कई बार हम लोग बिलीव करते हैं कि हम होली स्पिरिट की प्रेजेंस से प्रार्थना कर रहे हैं. But sometimes we pray what we know. लेकिन कई बार हम जानते हैं कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं. We don't need to pray what we know. हम वो प्रे करने की जरूरत नहीं है. हम नहीं जानते कि We need to pray what we don't know. हमें वो प्रेयर करने की जरूरत है जो हम नहीं जानते. Nothing but you have to ask for the wisdom in order for us to understand what we have to pray. हमें विजडम के मांगने की जरूरत है ताकि हम अपनी बुद्धि से नहीं, खुदा की विजडम से हम प्रेयर कर सकें. I hope everyone is understanding. मैं आशा करता हूँ कि सब लोग समझ पा रहे हैं. So today, in the Revelation, the book of Revelation, the Apostle John is trying to say that angel of the Lord, give that book to me. सो बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि अपोस्टल जॉन एंजल से वो बुक को मांग रहा है. But angel of the Lord is saying again that take, I'm not able to give that, just take from my hands. तो एंजल ने क्या बोला कि जस्ट इसको ले ले और खा ले. Angel is not coming into the level of Apostle John. एंजल उसके लेवल पे नहीं आया था, अपोस्टल जॉन के लेवल पे. But angel is inviting John into his level to take the book from his hands. लेकिन एंजल अपोस्टल जॉन को इनवाइट कर रहा है उसके लेवल तक आने के लिए ताकि sometimes if you need an anointing of the Holy Spirit, so sometimes तुम anointing को जरूरत होती है, anointing चाहते हो तुम खुदा से. you have to enter into the position of the Lord. तुम्हें उस पोजीशन पे एंटर करने की जरूरत है. Anointing will not be given, you have to take the anointing from God. अनॉइंटिंग दी नहीं जाती है, तुम्हें उस लेवल पर जाकर ले लेना है उसको. Prophet Elijah never given mantle to the prophet Elisha. प्रॉफिट एलाइजा ने अपनी अनॉइंटिंग को दिया नहीं था एलिशा को.
The mantle of the prophet Elijah is released on the ground. जो उसकी अनॉइंटिंग थी वो रिलीज हो गई थी धरती पर। So the mantle of the prophet Elijah is released on the ground. जो उसकी अनॉइंटिंग थी वो रिलीज हो चुकी थी उस ग्राउंड के ऊपर। So prophet Elisha just went into that place and he took the mantle. सो प्रॉफिट एलीशा जो था उस प्लेस पे गया और उसने ले लिया। So prophet Elijah was never given his spirit to Elisha. सो प्रॉफिट एलिजा ने अपनी स्पिरिट को दिया नहीं था उसको। But that anointing, that mantle were released on the ground. लेकिन जो अनॉइंटिंग रिलीज हुई थी उस ग्राउंड के ऊपर, Brother, there are something that is going to happen that या समथिंग यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ होने वाला है। there are some mantles are still available on the ground. यहाँ कुछ लोग हैं जो इस ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल हैं। You have to take the mantle from that. तुम्हें उस चीज को लेना है। No one can give the mantle to you. You have to take when you enter into the level of mantle. तुम्हें उस लेवल पर जाने की जरूरत है। We are praying to God. We need to receive something from God as we are in our level. हम अपने लेवल पे खुदा से मांगने की कोशिश करते हैं। So we are desiring for us to receive something from God as we are in our level. हम डिजायर करते हैं खुदा से अपने ही इस लेवल के ऊपर कि हमें ये चीज मिल जाए। God is inviting you into His level. Oh Lord, खुदा तुम्हें इनवाइट कर रहा है उसके लेवल तक आने के लिए। If you want mantle of Jesus, no need to ask mantle of the Lord to Jesus. So अगर तुम जीसस की उन चीजों को लेना चाहते हो तो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। It is available right now. या आमीन, यहाँ अवेलेबल है right now. If you want to take it, you have to come into the level. अगर तुम उसको लेना चाहते हो तो उस लेवल तक आ जाओ। Angel is not able to give that book to the Apostle John. एंजल जो था वो अपोस्टल जॉन के पास नहीं गया था। But angel is inviting John in his level. बट एंजल उसको इनवाइट कर रहा था अपोस्टल जॉन को कि इसको ले ले और खा ले। So when Jesus crucified, सो जीसस जब क्रूसीफाई हुए थे, that is the moment that everything was given to you. वही एक मोमेंट था जब सब कुछ तुम्हें दे दिया गया था। But you are praying for something that is already existed in you. लेकिन फिर भी तुम प्रार्थना कर रहे हो कि जो ऑलरेडी तुम्हारे पास एग्जिस्ट है तुम उस चीज को मांग रहे हो। Just grow in spirit by getting the knowledge. जस्ट स्पिरिट में ग्रो करो नॉलेज के साथ। When you receive knowledge, then knowledge unlocks your spiritual dimensions. लेकिन जब तुम नॉलेज में बढ़ जाओगे तब तुम्हारी स्पिरिट ओपन हो जाएगी। So when you come into the presence of the Lord, तुम खुदा की प्रेजेंस में आना स्टार्ट करोगे। don't ask anointing, but in the name of Jesus, I take the anointing. Just you have to pray like that. अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन ये कहो कि यीशु के नाम से मैं इस अनॉइंटिंग को ले लेता हूँ। Anointings were not to give. Anointings were have to be take. अनॉइंटिंग देने की चीज नहीं है, अनॉइंटिंग जस्ट टेक इट, ले लो। You have to take the anointing. It is not to be given. अनॉइंटिंग तुम्हें दी नहीं जाती है, जस्ट इसको टेक इट, ले लो। This is serious topic, dears. यहाँ ये एक सीरियस टॉपिक है। You have to understand voice of the Lord in the dimension of His Spirit. तुम्हें यहाँ खुदा की आवाज को समझने की जरूरत है उस डायमेंशन तक पहुंचकर खुदा के लेवल। You are praying for healing. तुम हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहे हो। You are praying that Jesus give me healing. Give the healing to me. Oh Lord, तुम प्रेयर कर रहे हो कि खुदा मुझे हीलिंग दे, मुझे हीलिंग दे। But today pray that I take healing from you. Oh Lord, Amen. लेकिन आज तुम्हें प्रेयर करनी है कि मैं हीलिंग को ले लेती हूँ। The moment when you say I take the healing from you, then your spirit will enter into His positions and His levels. जब तुम ये प्रार्थना करना स्टार्ट कर दोगे कि हीलिंग को मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, जब तुम्हारी स्पिरिट उस डायमेंशन तक पहुंच जाती है। Your voice is nothing but you yourself. So I hope everyone is understanding.
सो मैं आशा करता हूँ कि सब लोग समझ पा रहे हैं। So today, you people have to pray that, Lord, I take the health from you. सो हमने क्या बोलना है कि खुदा हम उस हेल्थ को ले रहे हैं तुमसे। उस Lord, I take the prosperity from your kingdom. सो मैं खुदा मैं उस प्रॉस्पेरिटी को आपके किंगडम से मैं ले रहा हूँ। Some of the precious things were chosen not to be given. सब कई प्रेशियस चीजें हैं, कई कीमती चीजें हैं जो चुनी गई हैं तुम्हारे लिए। You have to take the precious thing from God because you are the son of the living God as you are authorized person. ओ लॉर्ड, तो तुम्हें उन चीजों को ले लेना है क्योंकि तुम अथोराइज्ड पर्सन हो, तुम जीसस के बेटे बेटियां हो, तुम्हें से वो सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें जस्ट उसे लेना है। So today, the God is calling you as you are a Samuel. सो खुदा आज तुम्हें बुला रहा है जैसे उसने सैमुएल को बुलाया था। So you have to reply, Master, I am here. सो तुम्हें आवाज देने की जरूरत है, तुम्हें फिजिकली आवाज रिप्लाई करने की जरूरत है कि मैं यहाँ हूँ। Most of the people try to reply to God in the spirit, मोस्ट ऑफ लोग हैं जो स्पिरिट में रिप्लाई करते हैं खुदा को, but that will not be applicable in the kingdom of God. लेकिन वो किंगडम जो खुदा के किंगडम में वो एप्लीकेबल नहीं होता है स्पिरिट में बात करना। When you reply to God physically, it will come into the spiritual. जब तुम खुदा को फिजिकली रिप्लाई करते हो तब तुम स्पिरिट में पहुंच जाते हो। So today your prayers are being answered. सो आज आपकी प्रार्थनाएं का आंसर आ चुका है। I'm repeating by the power of the Holy Spirit, your prayers are answered. सो मैं खुदा की आत्मा से मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर आ रहा है। I say once again, your prayers are answered in Jesus Christ's name. तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आज आ चुका है यीशु के नाम में। So because you are entered into the place of authority to take something from God. सो क्योंकि तुम उस प्लेस पर पहुंच चुके हो उस चीज को लेने के लिए। I hope everyone is understand. आई होप, मैं आशा करता हूँ सब लोग समझ रहे हैं। रेज That है। the Lord bless everyone in this place. खुदा आप सबको ब्लेस करे। I entered into the prophetic realm today, now, right now. या अभी प्रोफेटिकली खुदा की बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग एंटर कर रहे हैं। Let me give a great revelation now. मैं एक रेवलेशन देता हूँ अभी जस्ट नाउ। Yeah, so when I want to prophesy in the thousands of the people's meeting, जब मैं 1000 लोगों की गैदरिंग में जब मैं प्रोफेसाई करना चाहता था, so sometimes I ask Lord, show me something, a vision regarding your people. सो मैंने खुदा से प्रार्थना किया कि खुदा मुझे विजन दिखाओ अपने लोगों के लिए। At that time, I'm not able to see the vision. उस टाइम पर मैं एबल नहीं था। But the moment when I touch someone, लेकिन उस मोमेंट पे जब मैंने किसी से बात किया, the moment when I say I'm seeing something, वो मोमेंट जब मैंने उसको बोला कि मैं कुछ देख that रहा हूँ, that unlocks the dimension of the prophetic. उसने प्रोफेटिक अनलॉक कर दिया था उस डायमेंशन। So when I sing something, that is the moment that unlocks the prophetic. सो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ देख रहा हूँ तो इट मीन्स मैं प्रोफेटिक में एंटर कर चुका हूँ। So if you want to prophesy, सो अगर तुम प्रोफेसाई करना चाहते हो, so you people tries to receive the vision from God by asking something to God. सो तुम्हें उस चीज को रिसीव करना पड़ेगा बोलकर। Don't need to ask God, just one tool, that is the one key. जस्ट आस्क एक की है, सिर्फ एक सिंपल की है उसके लिए। Just go to a person and say, I'm seeing something. Oh Lord, उस पर्सन के पास जाओ और उसको बोलो कि मैं कुछ देख रहा हूँ। When I say I'm seeing something, the truth is I'm not seeing something. जब मैं बोल रहा था कि मैं कुछ देख रहा हूँ, एक्चुअल में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। But when I say I'm seeing something, that is the moment that unlocks the prophetic dimension. Lord, जब मैंने बोलना स्टार्ट किया कि हाँ मैं कुछ देख रहा हूँ, मतलब उस चीज को, उस डायमेंशन को मैंने अनलॉक कर दिया। Because my voice unlocks the dimension of the prophetic. क्योंकि मेरी आवाज उस डायमेंशन को अनलॉक कर रही है। Angels of the prophetic are waiting for your voice. Oh Lord, thank you Jesus. जो एंजल्स है प्रोफेटिक के, तुम्हारी आवाज का वेट कर रहे हैं,
तुम्हारी So आवाज को सुनने का वेट कर रहे हैं। angels are waiting for your voice. सो एंजल्स वेट कर रहे हैं तुम्हारी आवाज को सुनने का। If you say I'm seeing something, then the movement that is going to unlock the prophetic. सो अगर तुम ये बोलोगे कि मैं कुछ देख रहा हूं, तो इट मीन्स तुम प्रोफेटिक डायमेंशन को अनलॉक कर रहे हो। So now I'm seeing something. सो अभी मैं कुछ देख रहा हूं। I'm seeing something in somebody's life. मैं कुछ देख रहा हूँ किसी पर्सन को और किसी की लाइफ को। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। This is the power of the knowledge of the prophetic. ये एक पावर है नॉलेज ऑफ प्रोफेटिक की नॉलेज के बारे में। So go into the presence of the Lord and say, Lord, I'm listening to your voice. सो खुदा की प्रेजेंस में जाओ और बोलो कि खुदा मैं तेरी आवाज को सुन रहा हूँ। The truth is you are not listening the voice, लेकिन सच ये है कि तुम एक्चुअल में नहीं सुन रहे हो। but your faith is greater than the truths. लेकिन जो तुम्हारा फेथ है उस ट्रुथ को ओपन कर देगा। So when you say that, Lord, I'm listening your voice, सो अगर तुम बोलोगे कि लॉर्ड मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ, your spirit shall be prepared to listen the voice. जो तुम्हारा इनर पीपल है, स्पिरिचुअल पीपल है, वो डायमेंशन ओपन हो जाएगा खुदा की आवाज को सुनने के लिए। So your spirit shall be prepared to listen the voice of God when you say, Lord, I'm listening your voice. सो तुम स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो रहे हो खुदा की आवाज को सुनने के लिए जब तुम फिजिकली बोलते हो। This message is not for the babies. ये मैसेज बेबीज के लिए नहीं है। I know there are some people who are getting bored because of that you are listening something that you are not understanding. मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि कई लोग ऐसे भी हैं जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। I am not anointed. I'm not anointed for babies. मैं बेबीज, क्रिश्चियन बेबीज के लिए अनॉइंटेड नहीं हूँ। I'm anointed for the people who eat meat. मैं उन लोगों के लिए अनॉइंटेड हूँ जो मीट खाते हैं, जो मैच्योर हैं स्पिरिट में। I command your spirit shall come into the position of eating a meat that is called the word of the living God. मैं कमांड करता हूँ इसी वक्त तुम्हारी स्पिरिचुअल इनर पीपल को कि इसी वक्त वो जागृत हो जाए, इसी वक्त वो Today I rise your spirit by the power of God. मैं कमांड करता हूँ तुम्हारी स्पिरिट को राइज होने के लिए खुदा यीशु के नाम से। I open your ears in the name of Jesus. मैं तुम्हारे कानों को खोलता हूँ यीशु के नाम में। I open your eyes in the name of Jesus. मैं तुम्हारी आंखों को खोलता हूँ यीशु के नाम में। I open your spirit in the name of Jesus. मैं तुम्हारी स्पिरिट को ओपन करता हूँ यीशु के नाम में। The Lord that I serve, the same Lord shall give something, the power of God into you. जो खुदा है हमारा, वो तुम्हें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। Don't say that I received, but say I take it. ये मत बोलो कि मैंने रिसीव कर लिया, just take it, get it, कि मैंने Someone said take it. I'm taking it. someone say, सब लोग बोले कि I'm taking it, मैं ये ले रहा हूँ। Shout to the Lord, I'm taking something, what you need. जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम बोलो खुदा को, यस मैं ले रहा हूँ। ओ लॉर्ड, For everything to manifest, we need anointing. हर चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए अनॉइंटिंग की जरूरत है। Anointing has not to be given, anointing has to be taken. अनॉइंटिंग देने की जरूरत नहीं है, देने की चीज नहीं है, बट वो लेने की चीज है। जस्ट टेक इट। So how many people are trying to take something from God today? कितने लोग हैं जो खुदा से ले रहे हैं कि यस जस्ट टेक इट। मैं Can खुदा you से people say, I take my health from God in the name of Jesus? क्या तुम बोल सकते हो कि मैं अपनी हेल्थ को ले रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस? Don't say, Lord, remove my sickness. ऐसा नहीं बोलना कि गॉड खुदा मेरी सिकनेस को रिमूव करो। जस्ट टेक इट, Because it is not your sickness. क्योंकि ये तुम्हारी सिकनेस नहीं है। The moment when you say, Lord, remove my sickness, जब तुम इस बात को बोलते हो कि खुदा मेरी सिकनेस को दूर करो, it will become your sickness. ये तुम्हारी सिकनेस बन जाती है। So if you say, Jesus, there is my sickness, अगर तुम बोलते हो कि ये मेरी बीमारी है, because of your voice, that becomes your sickness. ओहो, ओ जीसस, तुम्हारी आवाज की वजह से वो तुम्हारी बीमारी बन जाती है। So confess today, I don't have any sickness in the name of Jesus. आज कन्फेस करना है कि मैं बीमार नहीं हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। Lord, I take my health from your kingdom.
मैं अपनी हेल्थ को आपके किंगडम के लिए देता हूँ। Lord, I take your power from your kingdom in the name of Jesus. सो खुदा मैं आपकी पावर को लेता हूँ आपके किंगडम के लिए। There is a person in the Bible, वहाँ बाइबल में एक पर्सन है, from 18 years, she is suffering with the bleeding, the blood bleeding. लॉर्ड, जो 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। She goes to Jesus, but she never asked the healing to Jesus. वो जीसस के पास गई थी, लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि मुझे हील करो। She took the healing from the Lord. हाँ, उसने हीलिंग को ले लिया था जीसस से। She took the power of Jesus, not only healing. उसने उस जीसस की पावर को ले लिया था, जस्ट हीलिंग को नहीं लिया था, उस पावर को ले लिया था। The power like that make Jesus weak. So we are trying to how can I say? I want me to come into your level for you people to understand. सो मुझे आपके लेवल पर आना पड़ेगा तुम लोगों को समझाने के लिए। So that woman, she took the power and also healing from Jesus. जो वो लेडी थी, उसने उस पावर को ले लिया था जीसस से, उस हीलिंग को ले लिया था। And immediately Jesus said, something went from me. इसीलिए जीसस ने बोला कि कुछ मेरे अंदर से निकला है। Something, the power of the Lord went from me. समथिंग, जो पावर है जीसस के अंदर से निकली है। That power Jesus not given to that woman. वो पावर जीसस ने नहीं दी थी उस लेडी को, But that woman took the power from Jesus. बट उस लेडी ने ले ली थी जीसस से। The power of the Lord is available to you right now. ओ पावर, जो खुदा की पावर है वो यहाँ मौजूद है राइट नाउ। Your faith is honored, nothing but your faith is great. जो खुदा ने कहा था कि तुम्हारा फेथ ही सब कुछ है। So today, how many people are having the faith that I'm not able to ask something to the Lord, but I'm able to take something from God. सो कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये बोल रहे हैं कि मैं इस चीज के एबल नहीं हूँ, मैं इस चीज के योग्य नहीं हूँ कि मैं कुछ मांगू, बस मैं ले सकता हूँ जीसस से। So the Lucifer, the evil spirits, also tries to pray to God. सो जो लूसीफर है, जो इविल स्पिरिट है, ऑल्सो ट्राई करते हैं खुदा से प्रार्थना करने के लिए। In the book of Luke, लूका की बुक में there is a scripture called the Legion Spirit. जो वहां एक स्क्रिप्चर है जहां एक स्पिरिट है, A spirit called the Legion, सेना. जो एक लीजेंड स्पिरिट है, लीजेंड सेना, आर्मी। A group of spirits called a legion. या एक ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स होती है जिसको लीजेंड बोलते हैं हम। So when Jesus entered into the place, जब जीसस ने उस प्लेस के ऊपर एंटर किया, so that legion spirit is desiring to pray, Lord, I'm not going to enter into the hell. So the demon is praying to Jesus. सो जब जीसस उस प्लेस के ऊपर पहुंचे थे जिसके अंदर भारी सेना थी, उस सेना ने प्रार्थना करना शुरू किया। So don't command me, Jesus, to enter into the hell. सो उस स्पिरिट्स ने, उस सेना ने जीसस से प्रार्थना करना शुरू किया कि हमें नरक में जाने की आज्ञा मत दे, हमें नरक में मत भेज। So the demons are saying that command me to enter into the pigs. सो डीमंस ने क्या बोला था कि हमें कमांड कर कि हम उस सुअर के अंदर एंटर कर पाए। Jesus was accepted that prayer. सो जीसस ने उस प्रेयर को एक्सेप्ट किया था। If the same Jesus is with you, how much the power is in your prayer? ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो सेम जीसस तुम्हारे पास मौजूद है, तो कितना पावर है तुम्हारे जीसस में, और तुम्हारी प्रेयर्स में कितनी पावरफुल है। So Jesus accepted the prayer of the evil spirits. सो ओ लॉर्ड, जब जीसस ने इविल स्पिरिट की प्रार्थना को कबूल कर लिया था, in the Old Testament, in the Old Testament regarding the Job, the Lucifer challenged God. तो अय्यूब की बुक में जब खुदा ने लूसीफर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, so the Job is praying to God. Sorry, the Lucifer is praying to God. लूसीफर खुदा से प्रार्थना कर रहा था, God remove the hedge from the Job. उसने लूसीफर ने खुदा से प्रार्थना किया था कि इस बाड़े को उससे हटा दे, अय्यूब से। God accepted that prayer.
और खुदा ने उस प्रेयर को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। You people are saying that God is not accepting my prayer. ओ लॉर्ड, और तुम लोग क्या सोचते हो कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? How can we say this language? हम ऐसी लैंग्वेज का कैसे यूज कर सकते हैं कि खुदा So God is accepting the prayer of the evil spirits. जबकि खुदा जब इविल स्पिरिट की प्रार्थनाओं को सुन रहा है, कबूल कर रहा है। But we believers of Jesus, we are saying to God, God, you are not accepting my prayer. और हम लोग जो बिलीवर हैं, हम ये बोल रहे हैं कि खुदा तू हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। Because there is only one answer. और वहां सिर्फ एक आंसर है। You are praying for what you have already received. तुम इस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, ऑलरेडी तुम्हारी है। Lucifer prayed because he was not received something from God. लूसीफर ने इस चीज के लिए प्रार्थना किया क्योंकि तुम ऑलरेडी उस चीज को रिसीव नहीं कर रहे हो। So how can God give something to you that is already existed in you? So खुदा कैसे तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है जो ऑलरेडी तुम्हारे पास एग्जिस्ट है वो चीजें? I hope everyone is understanding. मैं आशा करता हूँ सब लोग समझ पा रहे हैं। Lucifer, the evil spirits are always enjoying the prayer. लूसीफर या इविल स्पिरिट्स ऑलवेज हमारी प्रेयर्स को एंजॉय करती हैं। So we are also enjoying the prayers. हम लोग भी एंजॉय करते हैं अपनी प्रेयर्स को कि हमने प्रेयर कर लिया। Don't enjoy the prayer. अपनी प्रेयर्स को एंजॉय मत करो। Because we need to guide by the Holy Spirit to take something from God. So हमें होली स्पिरिट की गाइडेंस की जरूरत है कि हमें क्या लेना है खुदा से। Lucifer doesn't have authority to destroy the life of a Job. और लूसीफर के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो अय्यूब की लाइफ को नाश कर दे। Because of that reason, Lucifer is asking a permission to God to destroy the Job's life. That's the reason. ये रीजन है कि वो परमिशन वो मांग रहा था खुदा से कि इस बारे But you people have an authority according to 1 Corinthians chapter 3 verse number 21. All things are yours. लेकिन 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स नंबर 21 के अकॉर्डिंग हम उसमें लिखा है कि सब कुछ तुम्हारा है। So today let the Spirit of the Lord guide you to pray exactly by the power of the Holy Spirit. So आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदा की आत्मा के द्वारा, उसकी गाइडेंस के द्वारा आज आप प्रार्थनाओं को कर पाएं। There are some kind of women's. यहाँ काफी तरह की लेडीज है, वुमेन्स है। They are always enjoying to talk to God, but they are not able to enjoying to listen voice of God. काफी तरह की लेडीज हैं जो एंजॉय करती हैं खुदा से बातें करना, लेकिन उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहती हैं वो। So they talk to God 50 minutes. खुदा से बातें करती है 50 मिनट तक। But they are not able to desire to listen the voice of God even 1 second. ओ लॉर्ड, ओ जीसस, लेकिन हमारी कोई डिजायर नहीं है कि हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही खुदा को सुन ले। After finishing of your prayer, you will go outside immediately. ओ जीसस, हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने की इमीडिएटली हम उसी टाइम अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। So brother, when you finish your talking, you have to wait. God's talking. Oh Lord, thank you Jesus. So इसीलिए तुम्हें अपनी प्रेयर कंप्लीट करने के बाद you have to wait. तुम्हें वेट करना होगा उसकी आवाज को सुनने के लिए। If you are not waiting, your prayer is not finished. So अगर तुम खुदा की वेट कर रहे हो बोलने की, सो प्रेयर अभी फिनिश नहीं हुई है। Waiting is the part of your prayer. वेटिंग एक पार्ट है तुम्हारी प्रेयर का। So waiting is a prayer. So वेटिंग एक प्रेयर है। Waiting is a prayer to listen the voice of the Lord. So वेटिंग एक प्रेयर है खुदा की आवाज को सुनने के लिए। So first day you are not listening the voice of God. तो फर्स्ट डे तुम खुदा की आवाज को नहीं सुन पाओगे। So you enter into the second day, you are tried same thing again, you are not listening the voice of God. So सेकंड डे भी अगर तुम जाओगे तो तुम नहीं सुन पाओगे खुदा की आवाज को। But according to the sight of God, God is preparing your spirit to listen the voice of God. लेकिन खुदा के अकॉर्डिंग वो तुम्हारी स्पिरिट को प्रिपेयर कर रहा है उस खुदा की आवाज को सुनने के लिए। So for an example, so एग्जाम्पल हम देते हैं। So we all know the story of the Abraham. So हम सब लोग अब्राहम की स्टोरी को जानते हैं। So as the God commanded to the Abraham to sacrifice his child.
खुदा ने क्या बोला था उसके बेटे को सेक्रीफाइस करने के लिए अब्राहम को So बोला। when the Abraham goes on the top of the mountain, सो जब अब्राहम उस माउंटेन के पर्वत के ऊपर गया था, टॉप तक पहुंच गया था, so Abraham binded his son on the ark. सो उसने अपने बेटे को लकड़ियों के ऊपर बांध दिया था। So he is ready to cut off the head. सो वो रेडी था उसका सर काटने के लिए। But God called Abraham. सो खुदा ने बोला अब्राहम, If the Abraham is not listen the voice of God, what is the moment? अगर अब्राहम खुदा की आवाज को ना सुनता तो क्या हो सकता था? If the Abraham was not listen the voice of God, what is that moment? अगर अब्राहम खुदा की आवाज को ना सुनता तो वो मोमेंट क्या होता? Maybe our Bible is another version. सो हमारी बाइबल अनदर एक प्लेस पर होती। So God knows Abraham have the ability to listen my voice. सो खुदा को पता था कि अब्राहम मेरी आवाज को सुनेगा। He becomes the father of the faith. हाँ, वो बन गया था फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता। So sometimes God gives you his voice in order for you to get in the business. सो खुदा तुम्हें आवाज देता है कई बार तुम्हारे बिजनेस में। So let me give the protocol. सो मैं तुम्हें एक प्रोटोकॉल देता हूँ। So according to the Matthew chapter 7, I want you to read in your language. According to the Matthew 7 verse 7. मत्ती की बुक को हम निकालेंगे, Chapter 7 verse 7. चैप्टर 7 उसकी वर्स 7 को हम रीड करेंगे। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। So ask, it shall be given. सो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek, you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock, it shall be opened. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। It is only one message. यहाँ एक मैसेज है। So when you ask something to God, तो अगर तुम कुछ मांगते हो खुदा से, God given something in the spiritual realm, not physical realm. सो खुदा स्पिरिचुअल रैम में उस चीज को दे देता है, फिजिकल रैम में नहीं, स्पिरिचुअल रैम में। You have to find what God given in the realm of the spirit. You have to find something in the spiritual realm. तुम्हें उस चीज को ढूंढना पड़ेगा कि क्या हमने मांगा था और क्या खुदा ने स्पिरिचुअल रैम में दे दिया है। So when you seek, you will find that. सो जब तुम ढूंढोगे तो तुम उसको पालोगे। So when you knock, it shall be opened. सो जब तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। I already said that the knowledge unlocks something. सो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नॉलेज कुछ खोल रही है। So your business, your job is in somewhere. सो तुम्हारी बिजनेस, तुम्हारा जॉब समवेयर कई जगह पर पहुंच चुका है। Today seek by the power of the Holy Spirit so that you can find the job in the right way. सो आज तुम ढूंढना शुरू करो खुदा की विजडम के द्वारा, स्पिरिट के द्वारा, वो तुम्हें मिल जाएगा। For your sake, I'm going to unlock your job today in the name of Jesus. तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी जॉब्स को अनलॉक करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। For your sake, I'm unlocking your business in the name of Jesus. तुम्हारे लिए मैं बिजनेस को ओपन कर रहा हूँ यीशु के नाम में। आमीन। You invested a money in business and you failed. और तुमने मनी को इन्वेस्ट किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन तुम फेल हो गए। Because that's a wrong time. क्योंकि वो एक रॉन्ग टाइम था। Today, let the Spirit of the Lord guide you to invest a money in the right time. ओ जीसस, थैंक यू जीसस। लेकिन आज खुदा का आत्मा तुम्हें राइट प्लेस पर उस पैसे को इन्वेस्ट करना गाइड कर रहा है। In the name of Jesus, let your eyes locate. In the name of Jesus, let your eyes locate right things at the right time. यीशु के नाम में तुम्हारी आंखें वो सही जगह पर लोकेट हो जाएं। Sometimes you feel that God is not listening my prayer because you don't pray for what you have already received. Sometimes तुम्हें लगता है कि खुदा मेरी प्रेयर्स को नहीं सुन रहा है, क्योंकि तुम उस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। God doesn't need to listen your prayer. खुदा को जरूरत नहीं है तुम्हारी प्रेयर को सुनने की। I'm repeating once again. God doesn't need himself to listen your prayer. मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि खुदा को खुद तुम्हारी प्रेयर्स को सुनने की जरूरत नहीं है। Because it is already given unto you. क्योंकि बिकॉज वो ऑलरेडी तुम्हें दिया जा चुका है। Knowledge unlocks the power in you.
नॉलेज अनलॉक करती है पावर को तुम्हारे अंदर। When you meditate the word of God, you are unlocking something in your spirit. जब तुम मेडिटेट करते हो खुदा के वचन में, इट मीन्स तुम अनलॉक कर रहे हो स्पिरिट में कुछ। Don't read word of God. वर्ड ऑफ गॉड Don't read word of God, खुदा के वचन को पढ़ो नहीं, but read Jesus. जीसस को पढ़ो। Because the word of the Lord became Jesus. क्योंकि जो वर्ड ऑफ गॉड था वो जीसस बन गए थे। So for your problems, there is a solution, but that solution is hidden in Jesus. सो वहां तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन जीसस के अंदर छुपा हुआ है। For your sake, I am commanding the gates of heaven to be opened. सो तुम्हारे लिए मैं कमांड करता हूँ हेवन के गेट्स को ओपन होने के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस। Some people they have anointing, but the anointing is not working in powerful way. कुछ लोगों के पास अनॉइंटिंग है, लेकिन वो अनॉइंटिंग पावरफुल वे में काम नहीं कर रही है। Because they receive an anointing in their level, not in the anointing level. क्योंकि वो उस अनॉइंटिंग को रिसीव कर रहे हैं अपने लेवल पर, नॉट उस लेवल पर जिस लेवल पर उनको करनी चाहिए। Anointing invites you to receive him in his level. अनॉइंटिंग तुम्हें इनवाइट करती है, अनॉइंटिंग तुम्हें इनवाइट करती है अपने लेवल पर रिसीव करने के लिए। So brother and sister, you have to enter into the another glory today. यस आमेन। सो मेरे भाइयों बहनों, आज तुम अनदर लेवल पर स्पिरिट में एंटर कर चुके हो यीशु के नाम में। You have a problem in a fifth level. सो तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो 5वें लेवल पर होगी, वो है। But your solution is in the 6th level. लेकिन सॉल्यूशन 6th लेवल के ऊपर है। But you are seeking the solution in the 5th level. लेकिन ओ लॉर्ड, लेकिन तुम जो सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हो 5th लेवल पे ही ढूंढ रहे हो, जहां प्रॉब्लम। It will not get you, brother. वहां तुम्हें नहीं मिलेगा। Grow in spirit so that the solution will come to you. स्पिरिट में ग्रो होने की जरूरत है ताकि सॉल्यूशन तुम्हारे पास पहुंचे। The scripture saying that खुदा का वचन बोलता है, live in the spirit so that you never fulfill the lust of the flesh. So walk in the spirit so that you never fulfill the desire of your flesh. तो स्पिरिट में चलो ताकि तुम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा ना कर पाओ। But we are praying for the fleshly desires to be overcome. लेकिन हम अपने फ्लेश की, अपनी बॉडी की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। Don't pray for the fleshly desires. Pray for your spirit. When your spirit grows, the moment your spirit grows, the fleshly desires will be quenched. तुम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रेयर मत करो, लेकिन जब तुम अपनी स्पिरिट में बढ़ जाओगे, जब तुम्हारी स्पिरिट उस लेवल तक पहुंच जाएगी, तो तुम्हारी फिजिकल डिजायर्स भी कम पूरी होती जाएंगी। So you are suffering with that problem. तुम इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो। Don't pray your problem. अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रेयर मत करो। Don't allow your problem to lead you into the prayer life. ये प्रेयर मत करो कि मुझे इस प्रेयर लाइफ में एंटर करना है। Many people pray because the situation demands them to pray. कई लोग प्रेयर करते हैं क्योंकि वो सिचुएशन डिमांड करती है प्रेयर करने के लिए। But today let you people led by the Holy Spirit to pray. लेकिन आज तुम लोग होली स्पिरिट की गाइडेंस के साथ प्रेयर करोगे। If you led by the Spirit of the Lord to pray, that is the true prayer of the Spirit. अगर तुम खुदा की होली स्पिरिट की प्रेरणा से तुम प्रार्थना करते हो, वो एक एक्चुअल प्रेयर है। So don't pray by the situation. सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेयर नहीं करनी है। It is the deception of a Satan. ये एक शैतान की तरफ से एक धोखा है। Pray by the Holy Ghost. होली गोस्ट के द्वारा प्रेयर करो। In the name of Jesus, today let you people be filled with the Holy Spirit. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि होली स्पिरिट से तुम लोग भर जाओ। So I want to give another scripture of Ephesians chapter number 6. So हम बुक को निकालेंगे इफिसियों की पत्री चैप्टर नंबर 6।
Before that, I want you to read Ephesians chapter number 5, verse number 18. ओके, इफिसियों की पत्री चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 को हम रीड करेंगे कि दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमेन। So do not drink with wine, but be filled with the Holy Ghost. तो इसमें क्या लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। When you fill with the Holy Spirit, you look like a drunken person. अगर तुम स्पिरिट से भर जाओगे, अब तुम आत्मा से भर जाओगे, तो तुम ऐसे ही लगोगे जैसा तुमने नशा किया हुआ है। When a person drink more wine, he cannot understand the situation. It means he is not focusing on any situation. Oh Lord, अगर एक हम नशे करने वाले व्यक्ति को अगर हम देखें, उसने ड्रिंक किया हुआ है ज्यादा और बहुत ड्रंकर्ड है, और वो उस सिचुएशन को नहीं देख पाता है जो उसके आसपास की सिचुएशन है। I know some of the people have this experience. मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है। Drunken people, some of the people have experience. When you drink more alcohol, you will not know the situation. You cannot keep focus on the situations, what is happening around you. जब एक ड्रंकर्ड पीपल, जब एक नशेड़ी बंदा अगर ड्रिंक करता है, तो वो आसपास की सिचुएशंस को नहीं देख पाता है, उस पर फोकस ही नहीं करता। That is the same moment when you be filled with the Holy Ghost, you will not keep focus what is happening around your situations. सेम ऐसा ही होता है जब हम होली स्पिरिट से फिल हो जाते हैं, तब हमें आसपास की चीजों पर फोकस नहीं होता है। In the book of Acts chapter number 2, प्रेरितों के पुस्तक चैप्टर नंबर 2 में, when the apostles filled with the Holy Ghost, जब अपोस्टल फिल हो गए थे होली स्पिरिट से, the people said, these people are drunkards. उन लोगों ने क्या कहा था कि इन लोगों ने नशा किया हुआ है। You have a common senses called five senses. तुम्हारी एक कॉमन सेंसेस क्वालिफाई सेंसेस बन जाती हैं। So you are always keeping the focus on the situations, what is happening around you. So always तुम क्या करते हो कि अपनी सिचुएशंस के ऊपर फोकस बनाए रखते हो। Today, let you be filled with the Holy Spirit. आज खुदा का आत्मा तुम्हें अपनी आत्मा से फिल करे, यीशु के नाम। Then you will keep your focus on Jesus. तब तुम अपनी फोकस को जीसस के ऊपर लगाओगे। Let you people be filled with the Holy Spirit in Jesus Christ's name. Let सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम से। Amen. If you be filled with the Holy Ghost, you never keep your focus on the situations, what is happening around you. अगर तुम होली स्पिरिट से भर जाओगे, तो तुम अपने फोकस को उन सिचुएशन के ऊपर नहीं लगाओगे जो सिचुएशन तुम्हारे ऑल अराउंड घूम रही है। In the Bible, when the angel of the Lord approaching the people, बाइबल में जब एंजल, खुदा के एंजल थे, अप्रोच कर रहे थे लोगों को, the scripture says, the moment when angel of the Lord approaching people, the angel of the Lord said, fear not. जब हम बाइबल में देखते हैं, जब एंजल, खुदा के एंजल लोगों को अप्रोच कर रहे थे, तो क्या बोल रहे थे? फियर नॉट, कि मत डरो। So nothing but that person is not filled with the Holy Ghost. So nothing but जो पर्सन था वो खुदा की आत्मा से फिल नहीं था। So the angel of the Lord is coming to a person, that person is not filled with the Holy Spirit. जो एक पर्सन, एक एंजल है खुदा का, वो एक पर्सन के पास आ रहा है जो होली स्पिरिट से भरा हुआ नहीं है। If you fill with the Holy Spirit, what is the power? Oh Lord, अगर तुम होली स्पिरिट से भर जाओगे तो क्या पावरफुल बन जाओगे। Angels need the God in order to come to. एंजल्स को चाहिए तुम्हारे पास आना, वो तुम्हारे पास आना चाहते हैं। Then the moment the angel says, let me not to fear, when I go to the person, that person is filled with the Holy Ghost. Oh Lord, Amen. तो एंजल प्रेयर करते हैं कि मुझे डर, खुदा मुझे डर ना लगे जब मैं इस पर्सन से मिलूं, क्योंकि ये होली स्पिरिट से भरा हुआ है। ओ जीसस, We are the powerful person to create a history. हम एक पावरफुल पर्सन बन जाते हैं जब हम पाखरू से भर जाते हैं। In the Bible, every time when the angel approached to the man, the angel said, fear not. बाइबल में हम जहां भी देखते हैं, जब एंजल लोगों के सामने आता है तो वो क्या बोलता है कि फियर नॉट, मत डरो, मत डरो। But today we are going to create an history. लेकिन आज हम एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। That angel is going to say that, let me not to fear when I go to the person who filled with the Holy Spirit. Amen, amen.
कि आज हम को क्रिएट करने जा रहे हैं कि एंजल अब ये प्रेयर करके आएगा कि जिस पर्सन के पास मैं जा रहा हूँ खुदा, मैं डरने ना पाऊं क्योंकि ये होली स्पिरिट से भरे हुए लोग हैं। This is the great moment that God is giving opportunity to every man who have a desire to be filled with the Holy Spirit. आमेन। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ लोग अगर होली स्पिरिट से फिल होना चाहते हैं तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन द नेम How ऑफ many जीसस। people are ready to receive the Holy Spirit more enough? आमीन। कितने लोग भरना चाहते हैं होली स्पिरिट की सामर्थ्य से? रेज हैंड्स। So when you have a desire, just raise your hand or else comment a power. Comment the type a power. Type power. जितने लोग होली स्पिरिट से भरना चाहते हैं वो अपने हैंड्स को रेज करें और टाइप करें पावर। पावर। From today, angel of the Lord comes to you. That he says himself that let me not be afraid when I go to that person. So आज खुदा के एंजल आपके पास आ रहे हैं ये प्रार्थना करके कि खुदा मैं डरूं नहीं जब मैं इस पर्सन के पास जाऊं। Amen. I receive. As of me, I have a desire. That word has to happen in my life. Sorry, please repeat. As of me, I have my personal desire that I want to enter into that dimension. Okay, ये मेरी पर्सनल डिजायर है कि मैं इस डायमेंशन में एंटर करूं। If you have that much of your personal desire, God is going to create the history. Oh Lord, अगर तुम्हारी ये पर्सनल डिजायर है तो खुदा एक हिस्ट्री को क्रिएट करने जा रहे हैं आज। Amen. History is nothing but his story. हिस्ट्री एक स्टोरी के बिना कुछ नहीं है। Is nothing but Jesus story. History nothing but his story. हिस्ट्री जो है जीसस स्टोरी के बिना कुछ भी नहीं है। You are going to create a dimension that is not available. तुम एक डायमेंशन को क्रिएट करने जा रहे हो जो अवेलेबल नहीं है। This is an opportunity for you people to be filled with the Holy Ghost. यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए होली स्पिरिट से भरने की। Amen. If the angel of the Lord is feared when he sees to you, what about the evil spirits? Amen, 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 hallelujah. जब खुदा के एंजल्स तुम्हें देखकर डरेंगे तो इविल स्पिरिट्स का क्या हाल होगा? Hallelujah. Evil spirits use your name for them to be prosperous. इविल स्पिरिट तुम्हारे नाम को लेंगी और वो खुद प्रॉस्पर हो जाएंगी। If the evil spirit want to get more power, they will use your name because you are filled with the Holy Ghost. Oh Lord, oh Jesus. इविल स्पिरिट अगर प्रॉस्पर होना चाहेंगी तो वो तुम्हारे नाम को लेकर वो प्रॉस्पर होंगी क्योंकि तुम पावरफुल होगे। Amen, amen, amen. What your people are hearing, your ears are blessed today in Jesus' name. You are blessed today in Jesus. तुम लोग blessed हो यीशु के नाम में। When angels of the Lord come from heaven, let the angels fear for them to when the angels watch you. जब एंजल्स तुम्हें देखे और हेवन से तुम्हारे पास आए तो एंजल डरे in the name of Jesus. Even that angels of the Lord, I'm not speaking about the angels of the kingdom of the darkness. I'm speaking about angels of the living God. मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि एंजल्स ऑफ डार्कनेस, इविल स्पिरिट, मैं बात कर रहा हूँ कि एंजल्स ऑफ आवर लिविंग गॉड। If angel of the Lord is feared when he sees you, what about the evil spirits? जब खुदा के एंजल, हमारे जीवते परमेश्वर के एंजल जब हमें देख के डर जाएंगे, जब हम पावरफुल हो जाएंगे तो इविल स्पिरिट्स का क्या हाल होगा? You are praying to God for the evil spirits to be removed. तुम प्रेयर कर रहे हो कि इविल स्पिरिट को रिमूव होने के लिए। Today I am inviting you into the highest dimensions that never evil spirits comes to you. तो आज मैं तुम्हें उस डायमेंशन तक आने के लिए कि तुम इविल स्पिरिट को यहाँ से रिमूव कर पाओगे। So you in the dream, the evil spirits is attacking you. एक ड्रीम में तुम देखते हो कि इविल स्पिरिट तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है। You are watching a snakes in your dream. वो जो तुम्हारी वॉचिंग है वो नेक्स्ट हो जाती है तुम्हारे ड्रीम में। You are watching a snake python in your dreams. ओके, तुम अपने ड्रीम में एक सांप को देखते हो। So you yourself, you are watching that something is attacking you. तो तुम देखते हो कि कुछ मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। So you are praying to God, Lord, remove all things from me. तुम प्रेयर करते हो कि खुदा इन चीजों को रिमूव करो मेरे पास से। But your dream is opportunity for you to have strength more.
Sorry, please repeat Your again. dream is an opportunity for you to get more strength. जो तुम्हारा ड्रीम है वो एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हें और स्पिरिट में बढ़ने के लिए. If the snake is before you, you have to come to the position of eagle. तू अगर स्नेक, ओ लॉर्ड, ओ जीसस, वी आर पावरफुल. अगर स्नेक हमारे सामने है तो खुदा ने हमें इतनी स्ट्रेंथ दी है, ईगल की तरह, उकाब की तरह उस स्नेक को पकड़े और उठाकर फेंक दे. So you are praying for what Satan has released into you. सो तुम प्रेयर कर रहे हो कि इस एक चीज को रिलीज होने के लिए. So you are not praying for what God has released into you. सो तुम रिलीज नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर वो रिलीज हो रही हैं. So you are praying for what Satan has released into you. सो तुम प्रेयर कर रहे हो जो शैतान ने तुम्हारे ऊपर रिलीज कर दिया. But you are not praying for what God has released into you. लेकिन तुम उस चीज के लिए प्रेयर नहीं कर रहे हो जो खुदा ने तुम्हारे ऊपर रिलीज किया हुआ है. Nothing but you are keeping your focus on evil every time. Oh Lord, nothing. लेकिन तुम्हारा हर टाइम फोकस किसके ऊपर रहता है? इविल के ऊपर. Anointing works based on your focus. अनॉइंटिंग वर्क करती है तुम्हारे फोकस के बेस पर. If you keep your focus on the evil, then the anointing of God never worketh. अगर तुम हमेशा इविल स्पिरिट्स के ऊपर फोकस करते रहोगे तो अनॉइंटिंग कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती है. Satan knows you are not going to trap. शैतान जानता है कि तुम ट्रैप में फंसने वाले नहीं हो. But still Satan tries. लेकिन फिर भी शैतान ट्राई करता है. Satan trying still now. शैतान फिर भी ट्राई करता रहता है. But Satan knows that you are not going to deceive. लेकिन शैतान को पता है कि तुम लोग धोखा नहीं खाओगे. But Satan is trying right now. लेकिन शैतान अभी भी ट्राई कर रहा है. But we are failure in trying to receive the listen the voice of God. लेकिन हम फेल हो जाते हैं कि खुदा की आवाज को सुनने के लिए. Satan is perfect in trying. शैतान परफेक्ट है ट्राई करने में. He knows he's going to fail. वो जानता है कि वो फेल होने वाला है. But truth is not failed in trying. लेकिन वो जानता है कि वो ट्राई करने में फेल नहीं होता है. So what about you today? You are trying. At some point, you came down and you say that, Lord Jesus, I'm going to stop this. तुम ट्राई करते हो लेकिन तुम फेल हो जाते हो. तुम बोलते हो कि ओ लॉर्ड जीसस, बस मैं और नहीं कर सकता. Sometimes God shows the Lucifer. You have to learn from that Lucifer. हाँ, कई बार खुदा लूसीफर को दिखाता है कि देखो उसको, वो ट्राई करता रहता है. Watch to your enemy and learn from your enemy. That is a shameful word to the Christianity. तुम अपने एनिमी को देखो, शैतान को देखो और उससे सीखो कि वो ट्राई करता रहता है, कभी थकता नहीं है उस चीज में. He is still trying to trap you. वो फिर भी तुम्हें फिर भी ट्रैप करने, अपने जाल में फंसाने की कोशिश He करता है. knows you are not going to get trapped. वो जानता है कि तुम उस जाल में नहीं फंसोगे. स्टिल But वो ट्राई still करता है. he is trying. वो स्टिल फिर भी वो ट्राई करता रहता है. Today I am commanding. There is going to happen. The end of your trying is going to come today in Jesus' name. सो आज मैं कमांड करता हूं तुम्हारा एंड ऑफ ट्राइंग. तुम ट्राई करते रहो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आमेन. So nothing but after trying there is a result. That result is going to come to you in Jesus' name. सो नथिंग कम, लेकिन जब तुम ट्राई करते रहोगे तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस. आमेन. There is no result for the trying of the Lucifer. वहां कोई रिजल्ट नहीं था लूसीफर के ट्राई करने में. But there is a result if you try. लेकिन यहाँ रिजल्ट होगा जब तुम ट्राई करोगे तो. Today in the name of Jesus. In the name of Jesus. I command your power, I command your spirit to be developed in the spirit of the Lord. मैं कमांड करता हूँ कि आज होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर डेवलप करे इन द नेम ऑफ जीसस. So pray in tongues. सो टंग्स में प्रेयर करो. It will break the dimensions. ये डायमेंशंस को ब्रेक करेगा. It will break the chains. ये चेन्स को ब्रेक करेगा. So I command that, I pray that let you have an understanding of the tongues. मैं कमांड करता हूँ, प्रे करता हूँ कि तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आए इन द नेम ऑफ जीसस. If you want to know the mysteries when you speak tongues, then it is a moment that you will know the mysteries. अगर तुम मिस्ट्रीज को देखो तो फिर वो लोग टंग्स में प्रेयर करते थे.
Let your eyes locate the power of understanding of the tongue in Jesus' name today. आज यीशु के नाम में तुम्हारी आईज लोकेट हो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। So I hope everyone is blessed today in Jesus' name. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आज ब्लेस हो चुके हैं यीशु के नाम में। So don't pray for what you have already received. ओके, सो कभी भी प्रेयर मत करना कि जो चीजें तुम्हारी हैं और तुम्हारे पास हैं उन चीजों के लिए। Satan shows what you received and Satan inspires you to pray for this. राइट हैंड शो करता है कि क्या तुम्हारे पास है और शैतान हमेशा इससे लड़ता है। So let me say again, Satan is trying to make you inspired to pray what God has already given to you. मैं एक बार फिर से तुम्हें बताता हूँ कि शैतान क्या ट्राई करता है कि जो ऑलरेडी चीजें तुम्हारे पास है वो इंस्पायर करेगा तुम्हें उन चीजों के लिए प्रेयर करने को। Let you people be inspired by the Holy Spirit from today. आज तुम सब लोग होली स्पिरिट से इंस्पायर होने पाओ इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। Go before a mirror and say that I'm rich. मिरर के सामने जाओ और बोलो आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, आमेन। The truth is you are not rich. लेकिन ट्रुथ तो ये है कि मैं रिच नहीं हूँ। I already said that the faith is greater than your truth. मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जो फेथ है वो सबसे बड़ा है सच से। So whatsoever the man believes that it is a truth, God fake that. सो एवर जिस चीज पे इंसान विश्वास करता है खुदा उस चीज को पूरा कर देता है। I'm repeating once again. When a man says it is truth, God fake it. ओके, जब इंसान ये कहता है कि ये एक ट्रुथ है, जब फेथ करता है तो खुदा उस चीज को ट्रुथ बना देते हैं। So don't say to God, Lord, I'm poor. सो कभी मत बोलना कि खुदा मैं गरीब हूँ। Make me rich. मेक मी रिच, मुझे अमीर बनाओ। So it is a sign that God never responds to that kind of prayers. खुदा ऐसी प्रेयर्स पर कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। So God is not going to respond that kind of answered prayers. खुदा ऐसी प्रेयर्स को आंसर नहीं करते हैं। God never respond to the answered prayers. ओके, खुदा आंसर्ड की हुई प्रेयर्स को दोबारा से आंसर नहीं करते हैं, क्योंकि You people are feeling that you people are feeling that God is not responding to my prayer. तुम्हारे अंदर ये फीलिंग होती है कि गॉड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, खुदा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। Because your prayer is answered. क्योंकि तुम्हारी प्रेयर्स तो ऑलरेडी सुनी जा चुकी हैं। God doesn't need to create a wife for you as you are not married. खुदा ने तुम्हारे लिए अभी अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम्हारे लिए एक वाइफ को क्रिएट नहीं करना है। She's already existed. वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। You have to seek. तुम्हें ढूंढना है उसको। You will find her in the spirit. तुम अपनी स्पिरिट में उसको फाइंड करो। As we are the prophets, we unlock the dimension. सो यही एक है जो हम डायमेंशंस को अनलॉक करते हैं। Then she will come to you. तो वो तुम्हारे लाइफ में एंटर हो जाएगी। This is the protocol of a prayer. ये एक प्रोटोकॉल है प्रेयर्स का। So don't enjoy talking to God, enjoy listening God. सो इस चीज को एंजॉय मत करो जो खुदा से बात करना है, तुम लिसनिंग को एंजॉय करो, खुदा की सुनो। God enjoys talking. खुदा जो है वो एंजॉय करता है टॉकिंग को, बात करने को। So God enjoys talking. खुदा एंजॉय करते हैं टॉकिंग को, बात करने So को। if you enjoy talking, सो अगर तुम एंजॉय करते हो टॉकिंग को, if both God and you, when you were talking at the same time, जब खुदा और तुम सेम टाइम पर बात कर रहे हो, it created disturbance. ये एक डिस्टरबेंस को क्रिएट कर देगा। जब दो लोग सेम टाइम पर बोल रहे हैं, ये डिस्टरबेंस को क्रिएट कर देगा। So silent unlocks तो the talking power of God. तो साइलेंट चुप रहना जो उस डायमेंशन को ब्रेक करता है, खुदा की टॉकिंग को हम सुन सकते हैं। Are you understanding, everyone? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं। So when Samuel said that, Lord, Master, I'm ready to listen. जब सैमुएल ने कहा था कि मास्टर आई एम हियर, आई एम रेडी टू सर्व, So God continues to talk with him. तो खुदा ने कंटिन्यू रखा था उसके साथ बात करना। When Peter said, I'm not going to eat this, जब बिगेस्ट सीड था, जब उसने कहा कि मैं इसको नहीं खा रहा हूँ,
Again, the Lord said, "You have to eat." It means when the Peter rejected, the vision go back again to is that position. जब खुदा ने कहा था कि इसको खा ले, तो लेकिन पीटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, पतरस ने रिजेक्ट किया, नहीं मैं इसे नहीं खाऊंगा, वो वापिस उस डायमेंशन में चला गया था। So when you see a blessing in your dream, अगर तुम ड्रीम में एक ब्लेसिंग को देखते हो, after you wake up, you have to pray in the name of Jesus. I take the power that. तो तुमने उठते ही यही प्रेयर को करना है कि इन द नेम ऑफ जीसस मैं इस ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ। I take that waking in Jesus' name. मैं इसको लेता हूँ जीसस के नाम से। I take that blessing in the name of Jesus. मैं इस ब्लेसिंग को लेती हूँ या लेता हूँ यीशु के नाम में। But we are asking, even though God showed in your dream, ओ लॉर्ड, जीसस ने तुम्हारे ड्रीम में दिखा दिया, फिर भी हम उस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हैं। so when God showed something in your dream, that is a sign that God has given to you. अगर उसने तुम्हें ड्रीम में दिखा दिया तो ये एक साइन है कि वो तुम्हारी लाइफ में एंटर कर चुका है। But when people are praying, when we see the blessing in the dreams, we are asking something. बट स्टिल जब वो ड्रीम में देख लेते हैं, बट स्टिल वो फिर भी प्रेयर करते रहते हैं उन चीजों के लिए। Don't go into the position of asking, go into the position of taking. उस पोजीशन पे मत जाओ, मांगने वाली पोजीशन पे, टेकिंग लेने वाली पोजीशन पर जाओ। Today, let you people have the ability of taking something from God. आज तुम सब लोगों के ऊपर एबिलिटी आएगी लेने की। We believe Jesus. हम जीसस पर बिलीव करते हैं। Because of Jesus Christ. Because of Jesus Christ की वजह से। So because of Jesus Christ, we have an ability to take something from God. We don't need permission to take something from God. जीसस क्राइस्ट की वजह से हम उन चीजों को लेते हैं, हमें परमिशन नहीं चाहिए जीसस की वजह से। So today, how many people's eyes are opened? So कितने लोगों की आईज आज ओपन हुई है? Yes, amen. So I have given the knowledge that how Satan is deceiving the Christian people. So आज मैंने वो नॉलेज दी है जो जितने लोगों को डिसीव, धोखा खा रहे हैं जितने लोग। Satan never deceive you by using the badness. Satan deceives us by using the light. By using the light. Yeah. शैतान कभी भी हमारी बैडनेस को कभी यूज नहीं करता है। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो हमारी लाइट को यूज करता है। We are using our badness to blame God. हम खुद अपनी बैडनेस को यूज करते हैं खुदा को ब्लेम करने के लिए। I hope you people are listening. मैं आशा करता हूँ कि तुम सब लोग सुन रहे हो। So we are using our badness to blame God. So हम लोग खुद अपनी बैडनेस को यूज कर रहे हैं खुदा को ब्लेम करने के लिए। Satan uses the light of God, nothing but Satan uses the goodness of a man to destroy him. So शैतान बैडनेस को यूज नहीं करता है, वो मनुष्य की, इंसानों की अच्छाई को यूज करता है। How many people are understanding these kind of revelations today? कितने लोग आज की रेवलेशन को समझ पा रहे हैं? I hope everyone is doing that. मैं आशा करता हूँ कि सब लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। Yes. Whatsoever you see something in the dream, you are going to take that. Don't pray for that. अगर तुम आज से कोई भी चीज अपने ड्रीम में देखते हो तो उसके लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। Just take it. If something is bad in your dream, you have to say that I am not going to take it. अगर तुम गलत देखते हो कुछ अपने ड्रीम में, कुछ बैड देखते हो, तो तुम्हें ये बोलना है कि मैं इसे रिसीव नहीं करता हूँ, मैं इसे नहीं लेती हूँ। Then the bad things will go back to the original position. अगर तुम कुछ बुरा देखते हो अपने ड्रीम में तो तुम्हें वो रिसीव नहीं करना है, और वो जो बुरा जहां से आया वो वहां वापस चला जाएगा अपनी पोजीशन पर। This is the knowledge for you to have a strength in the dreams and in the visions. ये एक नॉलेज है तुम्हारे ड्रीम्स और विजन के लिए। Fear not when you have a bad dream. तुम्हें डरना नहीं है अगर तुम्हें एक बुरा ड्रीम आता है तो। When you reject a dream, that dream will come again tomorrow.
ओके, अगर तुम रिजेक्ट करते हो मे बी वो दोबारा से आए अगले दिन. So when a dream is coming in the tomorrow, then it is a sign that you rejected today. ओके, अगर वो दोबारा ओ जीसस, यस, ओके, अगर एक दिन तुम्हें ड्रीम आया, कोई बैड ड्रीम आया, तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो अगले दिन वही सेम ड्रीम तुम्हें आ रहा है, इट मींस तुमने पिछले दिन उसको रिजेक्ट किया था. But we are saying that, Lord, I am suffering with the bad dreams, but you are rejecting every day. लेकिन फिर भी तुम खुदा से क्या बोल रहे हो? हालांकि तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, फिर भी तुम खुदा को बोल रहे हो कि लॉर्ड मैं सफर कर रहा हूं इन सब चीजों से, लेकिन तुम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो उन चीजों को. So because of that reason, when you reject a dream, it will come again. So when a bad dream coming again and again and again, that is a sign that you are rejecting that dream. Bad dream. सो एक ये साइन है कि जब बैड ड्रीम तुमको आता है तुम रिजेक्ट करते हो, हर रोज रोज तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तभी वो तुम्हारी ड्रीम में बार बार आ रहे हैं. But you people are saying that, Lord, I'm suffering with the bad dreams, I'm attacking in dream. सो तुम लोग खुदा को क्या बोलते हो कि खुदा मैं तो परेशान हो गया इस ड्रीम से. But the Lord is saying today, my son, you are rejecting that bad dream. लेकिन खुदा तुमसे क्या बात कर रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, तुमने ऑलरेडी इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है. My God, the people who are feeling that I'm suffering with the bad dreams, my brother, this is a good news for you. So you are rejecting that bad dream. कई लोग यहाँ पर है जो फील कर रहे हैं कि मैं ऐसे बैड ड्रीम्स को देखा है मैंने, सो आज ये टाइम है उनको रिजेक्ट करने का, और तुम रिजेक्ट कर चुके हो. Because when Peter rejected by saying that I'm not going to eat it. जब पतरस ने रिजेक्ट किया था कि मैं इसे नहीं खाऊंगा, the voice come again. तो वॉइस दोबारा से आई थी. When Samuel rejected the God voice came again. जब शमूएल ने खुदा की आवाज को रिजेक्ट किया था, आवाज फिर से आई थी. When you reject evil spirit come again. जब तुम इविल स्पिरिट को रिजेक्ट करते हो, इविल स्पिरिट फिर से आती है. But you are saying that I'm suffering with the evil spirit. No, you are rejecting the evil spirit. That is a deliverance today in Jesus' name. So तुम लोग हर रोज रिजेक्ट कर रहे हो इविल स्पिरिट को, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास आ रही है. बट टुडे तुमने रिजेक्ट कर दिया है इन चीजों को. I hope everyone is understand this realm of deliverance. ओके, आमेन आमेन आमेन. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग समझ रहे हैं, और इस चीज को हम डिलीवरेंस बोलते हैं. डिलीवरेंस हो रही है. Amen. So we are feeling that we are destroying, we are suffering with the demons. That is a fake statement. कई लोग हम ये देखते हैं कि हम सफर कर रहे हैं इविल स्पिरिट से. The true statement is you are rejected that evil spirits. लेकिन ट्रू स्टेटमेंट ये है कि हम लोग इविल स्पिरिट को रिजेक्ट कर चुके हैं. In the book of Job, Lucifer came to God in the first time. God rejected to remove the hedge. लूसीफर, अय्यूब की बुक में लूसीफर खुदा के पास आया था कि खुदा इस बाड़े को तोड़ दे, परमिशन लेने के लिए आया था वो. So God is rejected to remove the edge around the Job. लेकिन खुदा ने रिजेक्ट कर दिया था उसको रिमूव करने के लिए. So Satan come again second time. लेकिन शैतान क्या है, फिर दोबारा से आया सेकंड टाइम खुदा के पास. But God never said I'm suffering with the Lucifer. Sorry? But God never said I am suffered with the Lucifer. I'm suffering with the Lucifer. Okay, तो खुदा ने नहीं कहा था कि मैं लूसीफर से परेशान हो रहा हूँ. Because the Lucifer came second time regarding the Job. क्योंकि लूसीफर जो सेकंड टाइम आया था अय्यूब के रिगार्डिंग. But God is not said that I am suffering with the Lucifer. लेकिन खुदा ने ये नहीं बोला था कि मैं सफर कर रहा हूँ लूसीफर की वजह से. But God said I rejected the hedge around the Job. But secondary, I'm allowing. I'm accepting your prayer second time. जब लूसीफर खुदा के पास आया था पहली बार कि अय्यूब के पास से वो बाड़े को हटा दे, तो खुदा ने रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन जब वो दूसरी टाइम आया था तो खुदा ने उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया था. So when you enter into the new level, your rejection will stop.
अगर तुम न्यू लेवल पर एंटर करते हो तो तुम्हारी रिजेक्शन स्टॉप हो जाती है. You stop rejecting the evil spirits because you enter into another level. That level you will never reject anything. That means you are not assigned to be tempted by the evil spirits. हाँ, तुम अगर अगले लेवल पर पहुंच जाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने उस चीजों को रिजेक्ट किया है, तुम टेम्प्ट नहीं हुए, शैतान तुम्हें टेम्प्ट नहीं कर पाया. By the grace of the Lord today, let you people enter into the new level. आमेन. खुदा की ग्रेस के द्वारा आज तुम सब लोग एक न्यू लेवल पर एंटर करने जा रहे हो. So the angels loves to worship God. एंजल्स लव करते हैं खुदा की वर्शिप करना. Even we are the people to love the worship God. इवन हम लोग भी खुदा की वर्शिप करना पसंद करते हैं, प्यार करते But हैं. angels trying to worship God who is in you. लेकिन एंजल्स उस खुदा की वर्शिप करना पसंद करते हैं जो खुदा तुम्हारे अंदर बसता है. So the angels is desiring to worship God. That God is in you. सो एंजल्स उस खुदा की वर्शिप करना पसंद करते हैं जो खुदा तुम्हारे अंदर रहता है. So if the angels want to worship God, the angel has to come to you. सो एंजल्स अगर खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, इट मीन्स वो तुम्हारे पास आ चुके हैं. Amen. Because the God is in you. क्योंकि खुदा तुम्हारे अंदर है. Sometimes angels comes to you not to bless you, but to worship God in you. कई बार एंजल्स जो तुम्हें ब्लेस करने के लिए नहीं आते हैं, वो जो खुदा तुम्हारे अंदर है उसकी वर्शिप करने के लिए आते हैं तुम्हारे पास. This is the power of heaven. ये एक हेवन की पावर है, स्वर्ग की ये पावर है. So angels of the Lord is prepared to hate heaven and love you. सो एंजल्स तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हैं तुम्हारे पास आने के लिए और तुम्हें प्यार करने के लिए. I hope you people are not getting what I'm saying. मुझे नहीं लग रहा कि तुम लोग समझ पा रहे हो. Angels are going to hate heaven and the same angels are going to love you. एंजल्स तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम्हें प्यार करने के लिए, लव करने के लिए. But I'm saying that angels are going to hate the heaven. That same angel is going to love you. ओके, एंजल्स अब हेवन जाने की बजाय तुम्हारे पास आना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो खुदा तुम्हारे अंदर है. Because heaven is not in heaven, heaven is in you. हेवन में नहीं है, हेवन तुम्हारे अंदर है. The Lord brought is heaven in you. जो खुदा ने हेवन को तुम्हारे अंदर भर दिया है. Because of that reason, in Matthew chapter number 6, the Lord Jesus teaches about prayer. Thy kingdom of God come. हाँ, मैथ्यू की बुक में खुदा ने जो प्रेयर हमें सिखाई थी उसमें क्या कहा था कि तेरा राज्य आए. The Lord Jesus said that the kingdom of God is not in heavenly places. The kingdom of the Lord is in the midst, in you. लॉर्ड जीसस ने ये नहीं बोला था कि तेरा राज्य ऊपर हेवन में है, उसने कहा था कि जैसा तेरा राज्य इधर आए, धरती पर आए. So this is an excellent preaching and excellent sermon. I believe this. Yes, amen. Yes, true. So today, you people are going to enter into the another level of glory. Amen. So आज आप सब लोग एक another level पे enter करने जा रहे हो in the name of Jesus Christ. So you are not going to pray what you prayed today. So तुमने उस चीज के लिए प्रेयर नहीं करनी है जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है. So some of the people are praying daily the same prayer. They are repeating the same prayer. So काफी लोग हैं जो same prayer daily करते रहते हैं. That is not a prayer. That is a tradition. ये एक प्रेयर नहीं है, ये तो एक ट्रेडिशन बना दिया कि सेम प्रेयर को हम डेली कर रहे हैं. But today, from today, every day your prayer is going to be changed. लेकिन आज से हर रोज तुम्हारी प्रेयर्स चेंज होती जाएंगी in the name of Jesus. If you pray for something today, that prayer tomorrow is not going to be prayed. Oh Jesus, amen. जो प्रेयर तुम आज कर रहे हो कल वो सेम प्रेयर तुम नहीं करोगे. If you pray repeatedly, that is a sign that you have not believed that God has given something to you. Yes, अगर तुम रिपीट कर रहे हो उन सारी प्रार्थनाओं को बार बार, इसका मतलब तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि जीसस ने वो सुन ली है तुम्हारी प्रेयर्स को. I hope everyone is understanding. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं. Don't remember something to God.
खुदा को कुछ भी याद दिलवाने की जरूरत नहीं है। Some people are saying that, Pastor, can you remember me in prayer? कई लोग बोलते हैं कि पास्टर क्या तुम मुझे याद करोगे प्रेयर में? Some people will say that, let God remember me. कुछ लोग बोलते हैं कि खुदा मुझे याद करे। It is a sign that God forgetted you. ये एक साइन है कि खुदा तुम्हें भूल चुका है। You are believing yourself that God is forgetted you, so that you are saying that God remember me. हाँ, तुम ये बिलीव कर रहे हो, तुम्हारा ये फेथ है कि खुदा तुम्हें भूल चुका है, खुदा मुझे याद करे, तो तुम ऐसा कर रहे हो। God will not remember you because God has marked you on His own hands. यस, खुदा तुम्हें भूला नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि उसने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया हुआ है। He designed you on the palm of the hand of the Lord. उसने तुम्हारा चित्र, तुम्हारी पिक्चर को अपनी हथेली के ऊपर बनाया हुआ है। When He want to bless someone, you are the one who is in this position. जब वो किसी को ब्लेस करने पर आता है तो इट मीन्स वो उसकी पाम के ऊपर है, उसकी हथेली के ऊपर है। So when God blesses someone, the truth is God is not blessing, but you are the one that blessing someone. Some people doesn't only need a blessing of God, but also the people needed your blessings. कुछ लोग ब्लेसिंग तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन ब्लेसिंग्स को चाहते हैं। So today, bless your husband, bless your wife, bless your children. So today, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को, तुम्हारी वाइफ को ब्लेस करने के लिए। Me as a prophet, I bless you in Jesus' name. मैं एक प्रॉफिट होने के नाते मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ इन जीसस नेम। आमेन। आई रिसीव।